محمد و آل محمد صلوات شمشیر کے قابل نہ تھا اور تنے عابد کسی زنجیر کے قابل نہ تھا شاہ کا سوکھا گلا شمشیر کے قابل نہ تھا حرملا سے پوچھئے ظالم یہ تو نے کیا کیا حرملا سے پوچھئے ظالم یہ تو نے کیا کیا معصوم سے تیر کے قابل یہ سر ہے بیبیاں اور شام کا بازار ہے ننگ سر ہے بیبیاں اور شام کا بازار ہے خاندان مصطفیٰ شہیر کے قابل نہ تھا خاندان مصطفیٰ تشہیر کے قابل نہ تھا فاطمہ صغریٰ کے خط کا شاہ کیا دیتے جواب فاطمہ صغریٰ کے خط کا شاہ کیا دیتے جواب کربلا کا واقعہ تحریر کے قابل نہ تھا کربلا کا واقعہ تحریر کے قابل نہ تھا اصغر ناداں کی حالت تھی نہ محتاج بیان اصغر ناداں کی حالت تھی نہ محتاج بیان بولتا قرآن تحریر
محمد و آل محمد صلوات خطے سے شروعات کر رہا ہوں، مل جل کر بابا سے بلند سارے سلوات جو حق کی ہے وہی کہیے، بات جو حق کی ہے وہی کہیے، ماتم آپ لوگوں کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. یاسر بھائی اور وہ جو بچے لڑکے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے بھیا تھوڑا آگے آ کے بیٹھ جائیں، ہم کو بھی سن لیں. مل جل کر بآواز بلند نعرہ صلوات. لحد میں
हिसाब कर दूंगा। बाबा जब बड़ा नारे सवाल सलाम जो आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं जनाब अंदार साहब का है। वो माइक भी जीरो करके चले गए, किसने कर दिया भाई? नहीं, आप चलने दीजिए ना। हुर्रियत है तो तकैये में रहने की ज़रूरत क्या है? करिए आप। हुर्रियत है तो तकैये में रहने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर टीचर में हम लोग नहीं रह रहे हैं, बिल्कुल के बाद बना नारा सलवार। यज़ीद के लिए जिंदा हुसैन है। बतौर खास के बैअत के तालिबों अभी नौर आएंगे। अरे बैअत के तालिबों अभी नौर आएंगे। तुम तो अभी से चुप हो, ये तो पहला हुसैन है। बाबा जब नारे सगा दो अभी से चुप हो, ये तो पहला हुसैन है। इंसानियत का कोई ना मसलक न कोई दीन। अरे इंसानियत का कोई ना मसलक न कोई दीन। हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है। अरे हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है। लब से हुसैन नाम नहीं एक फर्द का। लब से हुसैन नाम नहीं एक फर्द का। सच पूछिए कि एक इदारा हुसैन
سچ پوچھئے کہ ایک ادارہ حسین ہے بطور خاص کہ گھر گھر سے آ رہی ہے صدا یا حسین کی گھر گھر سے آ رہی ہے صدا یا حسین کی دنیا سمجھ رہی تھی اکیلا حسین دنیا سمجھ رہی تھی اکیلا حسین تم کو نہ ہو یقین تو حر سے پوچھ لو ارے تم کو نہ ہو یقین تو حر سے پوچھ لو اللہ تک پہنچنے کا راستہ حسین ہے بابا جب اللہ صاحب پہنچنے کا راستہ حسین ہے دہشت کے مارے نام بھی رکھتے نہیں یزید ارے دہشت کے مارے نام بھی رکھتے نہیں یزید دیتے ہو خود ثبوت کے زندہ حسین ہے ارے دیتے ہو خود ثبوت کے زندہ حسین ہے انصار مصطفیٰ کی فضیلت نہ پوچھئے انصار مصطفیٰ کی فضیلت نہ پوچھئے ارے یہ وہ نبی ہے جن کا نواسا حسین ہے یہ وہ نبی ہے جس کا نواسا حسین ہے ہر دور میں محافظ ولا يوصينا مولاة ولا يؤتي حقه المجتهدون الذي لا يدركه قوت الهمم
من فلا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا فخر معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم خص انت اول الظالم باللعن مني واكتبر اولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابعة اللهم لن يزيد خامسا ولعن عبيد الله وابن زاد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشمرا وعلى ابي سفيان وعلى زياد وعلى مروان الى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كان الله قاتلي فاطمة الزهراء اما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتكم وَاجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قِبْلَةً صلوات گرامی قدر واجب الاحترام سرداران امام بہت بڑی بڑی مجلسیں آپ لوگ سنتے ہیں اور بڑے بڑے خطیبوں کو سنتے ہیں اور میں تو چھوٹا سا حقیر سے سب سے نجب کا سب سے جاہل طالب علم میں ہی ہوں یاد رکھنے کا۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی عالم دین اور کوئی خطیب کوئی ذاکر جب سر منبر آتا ہے تو آتے ہی کہتا ہے فاتحہ۔ کیا کہتا ہے؟ سوال ہمارا یہ بچوں سے ہے کہ آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں فاتحہ؟ بہتر جانتے ہیں بچوں سے سوال ہمارا آپ لوگ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کرتے کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے فرش اعضاء کی سب سے پہلی بات 2 مہینہ 8 دن خوب عزاداری کرتے ہیں۔ 2 مہینہ 8 دن عزاداری کرنے کا ہمیں نتیجہ کیا ملا؟ ہمارے ہاتھ میں آیا کیا؟ شرمال، بریانی، کیا آیا؟ اچھے اچھے کھانے آئے۔ اسی کے لیے ہم نے فرش اعضاء بچھایا ہے کہ آپ کو بہترین بریانی کھلا دیں۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا پڑھا جاتا ہے جب ذاکر اور خطیب کہتا ہے فاتحہ؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میرے بچوں، چھوٹے بھائیوں، سورہ فاتحہ کہتے ہیں سورہ حمد کو۔ اسے کہتے ہیں سورہ حمد کو۔ سورہ حمد پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟
जब फर्श आज़ा पे आया जाता है तो क्या पढ़ा जाता है? सूरह हम्द पढ़ी जाती है। सूरह हम्द पढ़ने के बाद किया क्या जाता है? क्या किया जाता है? ये जो सूरह हम्द यानी सूरह फातिहा की तिलावत हमने की है, इसका सवाब इमाम हुसैन को दे रहा हूँ। किसको दे रहा हूँ? आज के बाद से याद रखना, ठीक है? पहला सबक है फर्श अज़ा का कि जब हम बैठे और आलिम कहे फातिहा तो सूरह हम्द पढ़ी जाए, और ये सूरह हम्द इमाम हुसैन को इरसाल किया जाए, और इरसाल करने के बाद बताया जाए कि मौला हुसैन आप थे तो फर्श अज़ा है, आपकी वजह से फर्श अज़ा बिछाई गई है। हम फर्श अज़ा पे पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम सूरह हम्द का तोहफा आपकी खिदमत में भेज रहे हैं। एक सलवात भेजिए मोहम्मद। ठीक है, सूरह हम्द मैं बहुत माजरत, बस ऐसे ही कुछ मुकद्दमात में ऐसे ही पढ़ूंगा, ठीक है ना? तो ये सूरह हम्द है मेरे बच्चों, इसको पढ़ना है फर्श अज़ा पे बैठकर। किसको भेजना है? इमाम हुसैन जियो सलामत। ठीक है, ये पहला मसला हल हो गया, पहला मसला हल हो गया। अब सवाल हमारा ये है कि हमने 2 महीना 8 दिन लिया क्या हमने 2 महीने 8 दिन किसी 2 भाइयों को जो आपस में नाइत्तेफाकियां थी उनको मिलाया? क्या कहना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज़ बुलंद, नारा सलवात। अगर 2 भाइयों में नाइत्तेफाकियां हैं और उनको आपने मिला दिया तो ये समझिए आप जब फर्श अज़ा से उठे हैं तो कुछ लेके उठे हैं, और अगर ये नियत लेके नहीं उठे तो ये समझिए कि आप फर्श अज़ा पे फर्श अज़ा की मार्फत से नहीं आए। सलवात भेजे मोहम्मद। फर्श अज़ा पाइए तो फर्श अज़ा की मार्फत पैदा कीजिए और अपने अंदर वो जज्बा ले जाइए जो अहले बैत ने हमें दिया है। वरना टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा? इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी देर बिरयानी बनाने से क्या फायदा है? दिखावे के लिए कर रहे हो। इससे अच्छा है भैया शरबत पे नजर दिला लो, इमाम कबूल कर लेंगे। जी हाँ, शरबत पे नजर दिला दीजिए और मौला हुसैन कबूल कर लेंगे। और अगर आपने बिरयानी खिलाने के बाद कह दिया कि देखा मैं, खत्म गए आप। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। माजरत चाहता हूँ, ये बातें हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से जाने लगे तो आखिरी लम्हे में अपने बेटे मोहम्मद बाकिर को बुलाया और कहा मेरे लाल मोहम्मद बाकिर, 4 लोगों से दोस्ती मत करना, ये मेरा मुकदमा है। 4 लोगों से दोस्ती मत करना। पहला कौन? कहा झूठे से दोस्ती मत करना, झूठे से, गीबत खोर से दोस्ती मत करना, बेनमाजी से दोस्ती मत करना, जो सिले रहम छोड़ दे, कतई रहम को अपना ले, उससे मत दोस्ती करना। सलवात भेजे मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ पॉइंट है, मैं देता चला जा रहा हूँ। आप लोग बेहतर जानते हैं कतई रहम किसे कहते हैं, सिले रहम किसे कहते हैं। कतई रहम उसे कहते हैं जो कतई रहम अपना लेता है। इमाम फरमाते हैं हादिसाती मौत होगी, हादिसाती मौत होगी। कतई रहम करने वाला खुद आराम से रह रहा है, पता नहीं माँ बाप कैसे रह रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है। रिस्क में तंगी आएगी, खुद ब खुद परेशान होगा आदमी, अचानक मौत आएगी। ये सब सारी चीजें हैं, इमाम ने बताया है।
اور ایسی پریشانی لاحق ہوگی کہ وہ اندر ہی اندر زمین میں گڑتا چلا جائے گا. لیکن جو صلہ رحم کو اپناتا ہے، امام فرماتے ہیں اللہ اس کے رزق میں اضافہ بھی کر دیتا ہے، اس کے عمر طویل بھی کر دیتا ہے، اور اس کو معصومین کی جگہ بیٹھنے کی توفیق عنایت کرتا ہے. صلوات تو یہ فرش ازا، آپ فرش ازا پہ آئیے تو معرفت کے ساتھ آئیے. فرش ازا پہ آنا ہے تو معرفت کے ساتھ آنا ہے. یہ تو آپ نے سنا ہوگا علماء سے اور سب سے سنا ہوگا، کتنے علماء پڑھ کے چلے گئے ہوں گے یہاں پر بھی، کہ جب بھی آپ آئیے تو باوضو آئیے. کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ کیا وجہ ابھی تک تو ہم نے نہیں سنا. یہ 10-15 سال سے جو مولانا آ رہے ہیں، جو عالم آ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرش ازا پہ آئیے تو باوضو آئیے. بتاؤں کیوں؟ اس وجہ سے جہاں پر امام حسین کی مجلس برپا ہوتی ہے، معرفت فرش ازا پیدا کیجئے. معرفت فرش ازا، ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. آپ جائیں کربلا اور کربلا کی زیارت کر کے چلے آئیں، اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کربلا گئے تھے؟ جی جی گئے تھے. زیارت کیے؟ جی جی زیارت کیا. زری کی زیارت کی؟ جی جی. کچھ حاصل کیا؟ بس ٹھیک ہے الحمدللہ، زیارت کر کے آیا ہم، اللہ کا شکر ہے. امام نے فرمایا، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا یاد رکھنا جو بھی میرے جد کی زیارت کو آتا ہے اور بغیر معرفت کے زیارت کیے ہوئے پلٹ جاتا ہے، بغیر معرفت کے زیارت کر کے میرے جد کی پلٹ جاتا ہے، گویا وہ زیارت کرنے نہیں آیا. پھر کس لیے آیا؟ امام فرماتے ہیں وہ صفا مروہ میں چکر لگانے آیا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں، امام کا فرمان ہے صفا مروہ کا چکر لگایا. اچھا، کربلا میں صفا مروہ کہاں سے آ گیا؟ بات کربلا کی ہو رہی ہے نا، تو یہ صفا مروہ کے چکر لگانا کیا مطلب؟ امام کہہ رہے ہیں اس کا مطلب امام کا لفظ کسی بھی حکمت سے خالی نہیں ہے نا. توجہ رہے. امام نے کیا کہا؟ اگر بغیر معرفت کے تم نے میرے جد حسین کی زیارت کی تو گویا تم نے صفا اور مروہ میں چکر لگایا، دوڑ کیا، زیارت نہیں کی. میں نے کہا مولا یہ کہہ دیتے بین الحرمین چکر لگایا، یہ صفا مروہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مولانا کا تمہیں پتہ نہیں ہے قبر حسین سے قبر عباس کی اتنی ہی دوری ہے جتنی صفا مروہ میں ہے. بول دیجیے گا، بول ہوئے گے، بول دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو کتنی دوری ہے مولا عباس کی قبر سے اور امام حسین کی قبر سے؟ کتنی صفا اور مروہ میں دوری ہے. اسی وجہ سے امام نے کہا کہ اگر بغیر معرفت کی میری جد کی زیارت کی تو گویا تم نے صفا مروہ میں چکر لگایا. اب آپ سنیے، جہاں مجلس امام حسین ہوتی ہے، بچوں سنو یار سے، جہاں مجلس امام حسین ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے تحت قبۃ الحسین. امام حسین کا قبہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ قبہ کہا جاتا ہے. سوال آپ سے کروں، قبے کے نیچے کیا ہے؟ بھائی قبہ ہے، اس قبے کے نیچے کیا ہے؟ کربلا میں جائیے آپ، قبے کے نیچے ہے ذریح مقدس. ذریح مقدس میں کیا ہے؟ قبر حسین. تو آپ فرش ازا پر نہیں آئے ہیں، قبر حسین بھی آئے ہیں. اس وجہ سے آپ باوضو آئیے، اس وجہ سے باوضو آئیے. اور ایک بات اور بس
मुकदमा मैं ख़त्म कर रहा हूँ। क्या वजह है? माशाअल्लाह से सारे हर जगह लोग मुसल्लीन हैं और नमाज पढ़ने वाले सारे ये तो सुनते चले आ रहे हैं कि नक्सलवाद भेजा मोहम्मद, नमाज पढ़ते हैं 2 रकात मौलाना के पीछे नमाज पढ़ें, जैसे तीसरे रकात में पहुंचे फौरन ख्याल आ गया मैं लड़का हूँ पैसा दे के आए थे, पता नहीं गया कि नहीं। ऐसा है, होता है ना। आपको बता दूं कि अगर किसी ने खालिश नमाज पढ़ी है तो उस नमाजी का नाम है अली इब्न अबी तालिब। एक नारा हैदरी, या अली या अली या अली हैदरी। अच्छा, फर्श अज़ा पर बैठते हैं तो हमारा कोई ख्याल नहीं आता, वजह क्या है, दलील क्या है, क्यों नहीं आता, बताऊं आपको। उसको क्या कहते हैं? फर्श अज़ा। फर्श अज़ा है कब्र इमाम हुसैन, दलील दे रहा हूँ। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, आप फरमाते हैं कि जब मेरी जद की ज़ियारत के लिए करबला जाओ तो मेरी जद की तुरबत से खाके शिफा लेके निकलो। क्या लेके निकलो? खाके शिफा लेके निकलो। और जैसे ही खाके शिफा ले करके नशेब से फराज की तरफ आओ, उस खाके शिफा को किसी कपड़े में बंद कर लो। शायद ने पूछा मौला ऐसा क्यों? कहा इस वजह से जहां तक हायरे हुसैनी है, हायरे हुसैनी समझते हैं आप? हायरे हुसैनी, अरे भाइयों कुछ हायरे हुसैनी सलमान भेजे यहाँ तक आया हूँ तो ज़रूरी समझता हूँ कि हायरे हुसैनी का तस्करा कर दिया जाए। हायरे हुसैनी मेरे छोटे भाइयों, मेरे बच्चों, हायरे हुसैनी याद रखना। देखिए बहुत बड़े बड़े आयतुल्ला गुजरे हैं, मोहम्मद हुसैन हायरी, आयतुल्ला कज़वीनी हायरी और आयतुल्ला मेहंदी हायरी, ये सब हायरी कहलाए हैं, ठीक है ना। हायर किसे कहते हैं? मामला ये हुआ कि जब तूफान नूह आने लगा, जैसे ही तूफान नूह आने लगा तो 3 ज़मीनों ने सर उठाया, अका परवरदिगार ये तूफान है, ये नूह का तूफान है, ये अज़ाब का पानी है, सबके सीने पे जाए हमारे सीने पे ना आए, सबके सीने पे जाए हमारे सीने पे ना आए। तारीख कहती तूफान नूह इतना बड़ा आया कि नूह की कौम डूब गई, लेकिन जैसे ही तूफान नूह का पानी करबला के पास आया फौरन दायरा करने लगा, तवाफ करने लगा। नशेब के अंदर तूफान का पानी नहीं पहुंचा, पहली दलील। दूसरी दलील ये मोतमिद अब्बासी का जमाना है, उसने कहा कब्र हुसैन पे हल चलाओ, हल चलाया गया। कहा एक काम करो फुरात को काटो और फुरात को कब्र हुसैन तक ले जाओ, खत्म कर दो हुसैन के नामो निशान को। तारीख कहती 17 मरतबा मोतमिद अब्बासी ने हल चलवाया इमाम के कब्र पर, और ये फुरात कटवा करके उसने मजदूरों से कई दिन लग गए। और जब फुरात कट के जैसे ही नहरे फुरात कट करके नशेब के पास आई, तारीख कहती है उलमाए अकाबिर ने लिखा फुरात का पानी चक्कर लगाने लगा नशेब का। इसी हिस्से को कहते हैं हायर, इसी हिस्से को क्या कहते हैं? हायर। कोई भी पूछे फौरन बताओ, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज छठे इमाम ने क्या कहा? जैसे ही हायर से निकलो, फर्श अज़ा क्या है? फर्श अज़ा हायर हुसैनी है, समझ गए?
امام فرماتے ہیں جیسے ہی خاک شفا لے کے نکلو اور حائر سے نکلو فوراً اس کو غلاف میں چھپا لو. مولا کیوں؟ کہا اس وجہ سے حائر کے باہر کھڑا رہتا ہے شیطان. حائر کے باہر کھڑا رہتا ہے شیطان. شیطان خاک شفا کو مس کر لے گا, اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے. اس کا مطلب سمجھے آپ, نہ حائر حسینی کے اندر شیطان جا سکتا ہے, نہ مجلس حسین میں شیطان آ سکتا ہے. میں نے اپنے مقدمے ختم کر دیے, بس تھوڑی دیر اور زحمت دینا ہے آپ کو. آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف جو میں نے حاصل کیا سورہ یونس اور 87 نمبر آیت ہے. پروردگار کہہ رہا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی. آمادہ ہیں آپ حضرات؟ اگر جاگ رہے ہیں تو صلوات بھیجیں محمد. ٹھیک ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی. اور کس کی طرف؟ وَأَخِيهِ, اور ان کے بھائی کی طرف. اس کی ہارون کی طرف. کیا؟ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا, ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتکم, کہ تم بناؤ بنی اسرائیل والوں کے لیے ایک گھر. تم بناؤ بنی اسرائیل والوں کے لیے ایک گھر. وَاجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قِبْلَةً, اور اس گھر کو بناؤ قبلہ. کیا بناؤ؟ قبلہ بناؤ. کس کے لیے؟ بنی اسرائیل والوں کے لیے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ موسیٰ سے کہا جا رہا ہے. اب میں اپنی تفسیر نہیں اٹھاتا. اہل سنت کے سب سے بہترین رائٹر مفسر جنہیں فخر الدین رازی کہا جاتا ہے, فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر کی کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے اے موسیٰ بنی اسرائیل والوں کے لیے گھر بناؤ, اور اس گھر میں وہ گھر بناؤ اور اس گھر کو بنی اسرائیل والوں کے لیے قبلہ قرار دو. توجہ چاہتا ہوں, ایک صلوات بھیجے محمد والے. بس بہت جلدی اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں, سن لیجئے گا. ترجمے سے ہی آپ کو پہنچانا ہے. فخر الدین رازی نے کیا کہا؟ اس آیت سے مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اس آیت سے مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ اے موسیٰ تم اس گھر کو قبلہ بناؤ جس گھر میں تمہارے بھائی, تمہارے وزیر, تمہارے جانشین ہارون کی ولادت ہوئی ہے. اس کو جس گھر میں تمہارے بھائی, تمہارے وزیر, تمہارے جانشین کی ولادت ہوئی ہے. تو آپ سمجھے بنی اسرائیل والوں کے لیے موسیٰ نے اس گھر کو قبلہ بنا دیا جس گھر میں ان کے بھائی ہارون کی ولادت ہوئی تھی. تو یہ موسیٰ ہے جو بنی اسرائیل والوں کے لیے اس گھر کو قبلہ بنا دیا جس گھر میں ان کے جانشین کی ولادت ہوئی ہے. تو اب اگر محمد مصطفیٰ اپنے جانشین کے لیے, اپنے وزیر کے لیے, اپنے بھائی کے لیے خانہ خدا کو جائے ولادت خانہ بنا دے تو تعجب کیا ہے؟ صلوات بھیجے محمد. توجہ رہے, مولا کائنات کی ولادت کہاں ہوئی؟ کہاں ہوئی؟ خانہ کعبہ میں. کیوں ہوئی؟ وجہ کیا ہے؟
कोई कर सकता है आपसे? हम लोग फख्र करते हैं, जश्न मौलूद काबा बहुत बड़ा बड़ा लिखवाते हैं। कोई पूछ ले कि मौलूद काबा मौला आपके यहाँ कैसे? देखिए मसला ये है कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत की नौबत आई, परवरदिगारे आलम ने जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत हुजरे इमरान में किया। जनाबे अबू तालिब के घर में मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत हुई है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत के लिए जनाबे अबू तालिब ने अपना घर दिया। तो अल्लाह ने क्या कहा, चूंकि तुमने अपना घर दिया है मेरे मोहम्मद के लिए, तो तेरे बेटे के लिए मैं अपना घर दूंगा। सलावत भेजे बाबा ने। विलादत मौलाए कायनात की हो गई खाने काबा में। कैसे हुई कौन बताएगा? किताब का नाम है मिनल महदे इलल लहद, आयतुल्लाह काज़िम कज़वीनी की किताब। एक किताब फ़ज़ाइल अमीर अल मोमिनीन, आयतुल्लाह काज़िम कज़वीनी की। तवज्जो चाहता हूँ। जनाबे कुमैल आते हैं और आने के बाद कहते हैं मौला लिमाज़ा ततफ़क्कर, क्यों आप फिक्रमंद हैं, आप क्यों सोच रहे हैं? बय्यन ली, मेरे लिए कुछ बयान कीजिए। तो मौला ने कहा कि कुमैल तुम क्या चाहते हो? कहा मौला कुछ बयान कर दीजिए, आप हर वक्त कुछ सोचते रहते हैं। तो कहा तवज्जो, कहा कुमैल तुम ये चाह रहे हो कि तुम मेरे फजाइल बयान करो, तुम ये चाह रहे हो कि तुम मेरे फजाइल बयान करो, तब मेरी फजीलत आम होगी। कुमैल सुनो, ये अली का अकीदा है कि परवरदिगार ने कायनात में जितने इंसान पैदा किए हैं सबकी जुबान मेरे फजाइल से बंद हो जाए, सबके जबान मेरे फजाइल से बंद हो जाए। तो कुमैल सुनो, अली ये कह रहा है परवरदिगार दरियाओं को जबान दे देगा, परवरदिगार दरख्तों को जबान अता करेगा, परवरदिगार दरख्तों को जबान अता करेगा। ये दरिया भी अली के फजाइल पढ़ेंगे, ये समंदर भी अली के फजाइल पढ़ेगा। और तुम ये कहते हो अली सोचते क्या हो? तो मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ। कुमैल तुम भी मत सोचना, तवज्जो, कुमैल तुम भी कुछ मत सोचना। क्यों? अली को कोई सोच नहीं सकता, अली को कोई सोच नहीं सकता। जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। मौलाए कायनात ने कहा कुमैल याद रखना, सारी कायनात की अक्लें एक जगह जमा हो जाए और मरकज़े अक्ल पर आ जाए और वो अली को सोचे, तब भी उनके जहन में अली नहीं जा सकता। कुमैल ने कहा मौला क्यों? कहा इस वजह से कि अक्लें बाद में पैदा हुई है, अली पहले पैदा चमन कली कली अली 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 अली, डगा डगा गली गली अली 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 अली, नारे हैदरी। ठीक है कुमैल, सोचो नहीं कुछ। कुमैल ने कहा मौला कुछ बयान कर दीजिए, कुछ बयान कर दीजिए। मौला आप ये बयान कर दीजिए कि आपकी विलादत कैसे हुई। कुमैल ने कहा मौला बयान कर दीजिए विलादत कैसी हुई। क्या सुनना चाहते हो? कौन है ऐसा जो पैदा होने के बाद अपना विलादत नामे का मंजर पेश करे? कोई है? कोई है? किसी तारीख में कहीं मिला? नहीं मिला। एक बता मौलाए कायनात ने कहा कुमैल अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। जब मेरी माँ मेरे बाप के घर से निकली, तवज्जो, जब मेरी माँ मेरे बाप के घर से निकली तो मेरे बाप ने मेरी माँ को रोका नहीं। मौला क्यों नहीं रोका?
कहा इस वजह से नहीं रोका, मेरे बाप को पता था कि इसके बत्न में जो अमानत है वो मेरी अमानत नहीं है। इतने आराम से सुनिएगा, सलवात भेजे मोहम्मद। ठीक है, लिहाजा मेरे बाप ने रोका नहीं और मेरी माँ चली आई। और जब चली आई तो खाने काबा के पास आ गई। सवाल हमारा ये है कि जनाबे अबू तालिब काबे के क्या थे उस वक्त? मुतवल्ली थे, तवल्ली थे। काबे की चाबी जनाबे अबू तालिब के पास थी। किसके पास थी? चाबी क्यों नहीं ली? और बगैर चाबी लिए हुए जनाबे फातिमा बिनते असद निकल गई। एक सवाल और है, फातिमा बिनते असद किस वक्त निकली काबे से, तो घर से काबे के लिए? वक्त पता है? किसी को वक्त पता है कि फातिमा बिनते असद किस वक्त निकली घर से? मगरिब के वक्त निकली हैं। किस वक्त निकली हैं? मगरिब के वक्त निकली हैं फातिमा बिनते असद। क्यों निकली हैं? इस वजह से कि उस जमाने में मक्के के लोग मगरिब के वक्त आ करके एक दूसरे से मुलाकात करते थे। जी, अल्लाह चाहता तो फातिमा बिनते असद को किसी और वक्त भेज देता। ये मगरिब का वक्त क्यों भेज रहा है? ये मगरिब का वक्त क्यों भेज रहा है? इस वजह से भेज रहा है अल्लाह, ताकि ये जो मक्के वाले हैं, कुरैश वाले हैं, ये फातिमा बिनते असद की फजीलत को जान ले, पहचान ले। अब मौलाए कायनात ने कहा कुमार सुनो, जब मेरी माँ गई काबे के पास तो अपना दाया हाथ जेदारे हरम पे रखा और रखने के बाद एक जुमला कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी आमनतु बिक, परवरदिगारा मैं तेरे ऊपर ईमान ला चुकी हूँ। तवज्जो चाहता हूँ, परवरदिगारा मैं तेरे ऊपर ईमान ला चुकी हूँ, ईमान ला चुकी हूँ, ईमान ला चुकी हूँ। याद रहे, ईमान लाती है औरों की माएँ, ईमान ला चुकी होती है अमीरुल मोमिनीन की माँ। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। ठीक है, तो फातिमा बिनते असद ने क्या कहा? अल्लाहुम्मा इन्नी आमनतु बिक, परवरदिगारा मैं तेरे ऊपर ईमान ला चुकी हूँ। उसके बाद क्या कहा? अल्लाहुम्मा इन्नी आमनतु बिरसूलिक, परवरदिगारा मैं तेरे ऊपर और तेरे रसूल के ऊपर ईमान ला चुकी हूँ। और क्या कहा? अल्लाहुम्मा इन्नी आमनतु बिरसूलिक व वलदी फी बदनी व वसीय रसूलिक, परवरदिगारा मैं उस पर भी ईमान ला चुकी हूँ कि जो मेरे बत्न में मेरा बच्चा है और तेरे रसूल का वसी है। एक सलवात भेजे मोहम्मद। ठीक है, ये ईमान क्या है? मौलाए कायनात की विलादत के कितने साल के बाद ऐलान रसालत हुआ? 10 साल। 10 साल के बाद, 10 साल के बाद ऐलान रसालत हुआ है। ठीक है, तो ये कैसी खातून है कि जो जेदारे हरम पर हाथ रख करके ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह रही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कह रही है, अली वलीउल्लाह भी कह रही है। एक सलवात भेजे मोहम्मद। मौलाए फातिमा बिनते असद अंदर चली गई, मौलाए कायनात की विलादत हो गई। ठीक है, और 3 दिन के बाद रसूलुल्लाह गए। 3 दिन के बाद जैसे ही रसूलुल्लाह गए तो फातिमा बिनते असद ने शिकायत की,
कि ये कुछ बोलता नहीं, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, ये सब सुना हुआ है आपका, सब सुना हुआ है। और जैसे अली ने तौरेत सुनाई, साहिब तौरेत ने न सुनाई, जैसे ज़बूर अली ने सुनाया वैसे साहिब ज़बूर ने सुनाया, जैसे कुरान अली ने सुनाया वैसे सुनाया जैसे मैं तिलावत करता हूँ। आपसे सवाल है, मौलाए कायनात ने जो कुरान मजीद की तिलावत की है, किस सूरे की तिलावत की? कौन से सूरे की तिलावत की है काबे के अंदर मौलाए कायनात ने सबसे पहली मर्तबा? सलवात भेजिए मोहम्मद। सबसे पहली मर्तबा मौलाए कायनात कुरान की तिलावत कर रहे हैं। और कौन सा सूरा पढ़ रहे हैं? सूरे हम, सूरे कुल हुवल्लाह, सूरे हश, सूरे अन्नज़लना, सूरे अनकबूत, सूरे रूम। कौन सा सूरा, कौन सा सूरा पढ़ा है मौलाए कायनात ने? मौलाए कायनात ने रसूल इस्लाम की आगोश में जब कुरान पढ़ा तो कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लहल मोमिनून। सूरे मोमिनून की तिलावत की। आज जैसे ही तिलावत की रसूल अल्लाह ने, किसका मतलब क्या? क़द अफ़लहल मोमिनून, मोमिनीन फलाह पाने वाले हैं, मोमिनीन कामयाब होने वाले हैं, मोमिनीन कामयाब होने वाले हैं, मोमिनीन नाजे होने वाले हैं। रसूल अल्लाह भी वजद में आ गए और कहा या अली, वो उम्मत और वो चाहने वाले क्यों न कामयाब हो जाए कि जिनका मौला तू है। सलवात भेजे बाबा रब्बना मोहम्मद। मौलाए कायनात ने जो तिलावत की किस सूरे के की? सूरे मोमिन, सूरे मोमिन। ठीक है, इतना याद रखिएगा, कोई भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, एक और सलवात भेजिए। जब विलादत हो गई तो अकीका भी होता है। तो अब मौलाए कायनात का भी तो अकीका हुआ होगा कि नहीं हुआ था? हुआ था। जनाब अबू तालिब ने अकीका कर दिया। अकीके में क्या? 300 ऊँट। कितने? 300 ऊँट और 1000 बकरियां। 300 ऊँट, 1000 बकरियां, 1300 जानवर जनाब अबू तालिब ने मौलाए कायनात के अकीके में कटवाया और पूरे मक्के वाले को दावत दे दी। तमाम कुरैश वाले आ गए, ये खाने में तो माहिर थे ही, ये सब आ गए। जनाब अबू तालिब ने कहा सुनो, ऐसे नहीं खाओगे काफिर। देखिए अभी रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है, अभी रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है। जब मजमा आ गया खाने के ऊपर तो मौलाए कायनात ने कहा, मौलाए कायनात के बाप ने जनाब अबू तालिब ने कहा सुनो, ऐसे नहीं काफिर। कहा पहले काबे का 7 चक्कर लगाओ। क्या लगाओ? काबे का 7 चक्कर लगाओ और 7 चक्कर लगाने के बाद आओ और मेरे बेटे अली को करो सलाम, उसके बाद तुम्हें मिलेगा खाना। सलवात भेजे मोहम्मद। एक और सलवात भेजे मोहम्मद। ठीक है, जैसे ही जनाबे फातिमा बिनते असद घर गई तो देख लीजिए हर घर में माशाल्लाह से ख़वातीनें, आप किसी कुड़ा में भेज दीजिए, मतलब 4 भेज दीजिए, 8 रोक लीजिए, या 8 भेज दीजिए, 4 को रोक लीजिए।
जब वो सब पलट के आएंगे तो एक एक लहजा लहजा एक लम्हे लम्हे की खबर जो है उनको पता चलेगा। मसला यही था, जैसे ही फातिमा बिनते असद गई तो कुरैश की औरतें पीछे से पहुंच गई। पीछे से पहुंची, वहाँ हमने सुना है कि तुम वहाँ जदारे हरम पे खड़ी थी और वहाँ काबे की दीवार फटने लगी, तुम्हें डर नहीं लगा? तुम डरी नहीं? तुम डरी नहीं? तुम्हें डर, अभी यहाँ दीवार फटने लगे सब भाग जाएंगे। तुम डरी नहीं? फातिमा बिनते असद ने कहा तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है लेकिन गलत जगह कर रही हो। तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है लेकिन गलत जगह कर रही हो। तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है लेकिन गलत जगह कर रही हो। तुम सवाल किससे कर रही हो? पहले ये देखो, मैं हैदर कर्रार की माँ हूँ, फर्रार की माँ नहीं हूँ। सलवात भेजे बाबा जबरंग। एक सवाल और किया, ये बताइए ऐसे लम्हे में तो कोई शरीफ औरत अपने घर से निकलते नहीं, तुम कैसे निकल गई? बहुत अच्छा सवाल। ऐसे माहौल में एक शरीफ खातून अपने घर से नहीं निकलती, तुम कैसे निकल गई? तो फातिमा बिनते असद ने कहा दरअसल बात यह है कि हम हैं बनी हाशिम की खातून और हम बगैर बुलाए नहीं जाते, लिहाजा अल्लाह ने हमें बुलाया था तब मैं गई थी। एक सलवात भेजे मोहम्मद। मौलाए कायनात, अब मौलाए कायनात ने एक जुमला कहा, उमैल जब मेरी माँ जदारे हरम पे पड़ी थी तो मेरी माँ ऐसे नहीं गई बल्कि खाने काबा के अंदर से एक आवाज आई और जानी पहचानी आवाज थी। कुमैल जानी पहचानी आवाज थी। कुमैल ने कहा मौला बताइए, आप बताइए वो किसकी आवाज थी? तो मौलाए कायनात ने कहा खुदा की कसम कुमैल, मेरी माँ मेरे बाप की आवाज से ज्यादा वाकिफ थी और काबे में जो आवाज आई थी वो किसी और की आवाज नहीं थी, मेरे बाप अबू तालिब की आवाज थी। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। आप कहेंगे मौलाना अजीब चीज पढ़ रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ। ये तो खुदा का लुत्फ है इनके घराने पर कि जब जमीन पे बात करना होता है तो बाप के लहजे में बात करता है, आसमान पे बात करना होता है तो बेटे के लहजे में बात करता है। सलवात भेजे बाबा दे इतनी सारी चीजें, इतने सारे फजाइल, इतनी सारी मजलिसें, सब सुन लिया, सारी चीजें हो गई, सारी चीजें दर्ज कर लिया आपने, लेकिन यहाँ से जाने के बाद आप क्या ले गए मजलिस से? मजलिस से आप क्या ले गए? सवाल हमारा है, आखिरी बात और मजलिस तमाम। क्या लेके गए? आपसे कोई पूछेगा आपने इतना टाइम खराब किया अपना, क्या लेके गए आप? मेरे अजीजों याद रखिएगा, कभी भी कोई भी अज़ादार फर्शे अज़ा पे बैठ करके अपना वक्त खराब नहीं करता। जवाब दे रहा हूं, ये ले जाइए। कोई भी अज़ादार फर्शे अज़ा पे बैठ करके अपना वक्त खराब नहीं करता। दलील सुनिएगा क्यों? अगर एक इंसान की 100 साल की जिंदगी है, 100 साल की जिंदगी है और 70 साल उसने फर्शे अज़ा कायम की और फर्शे अज़ा पे बैठा, कितने साल? 70 साल। 100 साल में ये 70 साल शुमार नहीं किया जाएगा। क्या 100 साल में ये 70 साल शुमार नहीं किया जाएगा? इसका मतलब जितने साल आप फर्शे अज़ा पे बैठे हुए हैं, आपको इमाम हुसैन ने आपकी जिंदगी को तोहफा करार दिया है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। लेकिन जिस तरह
तरीके से ज़ियारत इमाम हुसैन करने के बाद अगर किरदार में चेंजिंग नहीं आई, किरदार में चेंजिंग नहीं आई, तो गोया आपकी ज़ियारत नहीं है। जब इमाम से पूछा गया था ना, क्या पूछा गया था, मौला कैसे पता चले मेरी ज़ियारत कबूल हो गई? मौला ने कहा देख लो अपने किरदार में तब्दीली पा रहे हो तो ठीक है, तुम्हारी ज़ियारत कबूल हो गई। इसका मतलब ये है कि किरदार की तब्दीली का नाम है ज़ियारत इमाम हुसैन। फर्श आज़ा पर उठ करके घर जाने के नाम, इसका मतलब जब आप घर पहुंचिए तो कम से कम देखिए कि मेरे किरदार में तब्दीली आई कि नहीं है। अगर तब्दीली आ जाए तो आपका फर्श आज़ा पर आना कबूल, आपकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाएगी। लेकिन याद रख लीजिएगा कि इंसान जब भी फर्श आज़ा उठ करके जाता है, हम आप एहसास नहीं कर सकते, लेकिन एहसास कब होगा जब हमारी आँख बंद हो जाए, जब हमारी आँख बंद हो जाए। लेकिन हम जब भी फर्श आज़ा बिछाते हैं, जब भी गिरिया करते हैं, हदीस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है, आप फरमाते हैं कि जैसे ही मेरा आज़ादार मेरे फर्श पे बैठ करके मुझे रोता है तो मैं हुसैन उसके लिए दुआएं इस्तग़फ़ार परवरदिगारा मेरे इस आज़ादार को माफ़ कर, परवरदिगारा मेरे इस आज़ादार को माफ़ कर, परवरदिगारा मेरे इस आज़ादार को माफ़ कर। इस तरीके से इमाम हुसैन एक एक आज़ादार के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। हमारी आपकी नज़रें नहीं देखती, लेकिन इमाम देखते हैं ये मेरा आज़ादार मुझ पर रोने के लिए, मुझ पर गिरिया करने के लिए आया, मुझ पर आंसू बहाने के लिए आया। सवाल करूँ, जनाब ज़हरा की उम्र कितनी थी? 18 साल। 18 साल उम्र थी जनाब ज़हरा, और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने 9 साल की उम्र बाबा के पास और 9 साल की उम्र शौहर के पास। बाबा भी इस इंतज़ार में था कि बेटी कब क्या मांगे और बाप क्या अता करे, बेटी कब क्या मांगे, कब क्या तमन्ना करे और बाप कब अता कर दे। इसी तरीके से मौलाए कायनात इसी इंतज़ार में थे कि ज़हरा कुछ कहे तो कुछ ला के दूँ। पूरी ज़िंदगी ज़हरा ने ना बाप से कुछ कहा ना माँ से कुछ कहा। अगर किसी से कहा है तो वो आप एक हाथ पसलियों पर रख करके, एक हाथ रुमाल में ले करके आती है और कहती है अज़ादारों लाओ इस रुमाल में मरहम हुसैन दे दो। अल्लाह अकबर। आप खुश नसीब हैं कि फातिमा ने आपके सामने दामन फैलाया, रुमाल फैलाया है। वो फातिमा जो बाप के सामने कुछ न कह सकी, वो फातिमा जो शौहर के सामने कुछ न कही, वो फातिमा आपसे इंतजार कर रही है। लाओ इस रुमाल में मरहम हुसैन दे दो। एक बात अच्छी लग जाए तो उसे अपना लीजिएगा। एक रुमाल बनाइए और वो रुमाल जब तक आज़ादारी हो रही है उसको आज़ादारी में लिए रहिए, और जैसे ही मुहर्रम ख़त्म हो जाए उस रुमाल को संदूक में रखिए, फिर अगले साल मुहर्रम में निकालिए, फिर रख दीजिए, और वहीं आंसू वसीयत करके जाइए कि इस रुमाल को मेरे कफन में रख देना, इस रुमाल को मेरे कफन में रख देना। अज़ादारों, वो रुमाल ऐसा रुमाल है कि जिसके अंदर ज़हरा की तमन्ना वसी हुई है। ज़हरा बार बार मक्तल में यही कह रही थी, इस शिम्र मेरे बच्चे को मत ज़बा करो, ये शिम्र मेरे बच्चे को मत ज़बा करो। अज़ादारों, एक रवायत अब्दुल रज़्ज़ाक़ मुकर्रम की रवायत पढ़ रहा हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घोड़ा जो फरस कहा जाता है, ये फरस था पहले, बाद में जुलजना हो गया। जुलजना कहते हैं जू माने के जू कहते हैं साहब को, जना कहते हैं परों को। यानी इमाम हुसैन के साथ साथ इतने तीर लगे जुलजना के घोड़े के कि वो भी जुलजना हो गया। लेकिन अज़ादारों, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम न ज़ीन पे थे न ज़मीन पे थे, तो चारों तरफ से लोगों ने घेरा लिया।
एक जुमला कहा कि देखो हुसैन के तन में जान बाकी है कि नहीं बाकी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन के तन में जान बाकी है कि नहीं बाकी है। तो एक मरतबा शिम्र आगे बढ़ता कहता अभी पता चल जाएगा हुसैन के तन में जान बाकी है कि नहीं। शिम्र वहीं खड़ा हुआ और शिम्र ने वहीं से इशारा किया ख़याम हुसैनी में आग लगा दी जाए, बीवियों की चादर छीन ली जाए। अल्लाह अकबर। ये जुमला सुनना था, हुसैन ने सारी ताकत इकट्ठा की। अज़ादारों एक जुमला कहा है शिम्र बेहया, अभी हुसैन के तन में जान बाकी है। हुसैन के रहते हुए अरे ख़ैमे हुसैनी की तरफ मत जाना। हाँ अज़ादारों लीजिए, इधर हुसैन को ज़िबा कर दिया गया। अला क़त्लल हुसैन बे करबला की आवाज़ गूंजी। अज़ादारों इधर ज़ुलजना उन्हें हुसैन को मस करके खैमे में पहुंचा। हुसैन की बेटी 4 साला बच्ची सकीना है। 4 साला बच्ची सकीना एक जुमला कहती है कि मेरे घोड़े तेरी जीन ढली हुई है, मेरे बाबा के घोड़े, मुझे पता चल गया कि मेरा बाबा मारा गया, लेकिन सवाल तुझसे ये करती हूँ कि ये बता दे मेरे बाबा को जब कत्ल किया जा रहा था तो मेरे बाबा को पानी पिलाया गया था कि नहीं पिलाया गया था। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह ज़ादारो, खुदा को कोई गम न दे सिवाय गम आले अतहार के। अज़ादारो हुसैन की 4 साला बच्ची सकीना है। 11 मुहर्रम आती है, बीवियों को असीर किया जाता है। अरे बीवियों को असीर किया जाता है। सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाली जाती है। आज़ादारों लीजिए, ये काफिला चला और ये काफिला चलता हुआ जब कूफे के बाजार के करीब पहुंचा तो एक बड़ा शिम्र ताजियाना लहराता हुआ सैयद सज्जाद के पास आता है। ए सैयद सज्जाद, ये बताओ इस खातून में, इन कैदियों में, इन असीरों में कौन सी बच्ची है जिसका नाम सकीना है? सैयद सज्जाद कहते हैं शिम्र, तुझे सकीना से क्या मतलब, तुझे सकीना से क्या वास्ता? शिम्र कहता है मैं सकीना से बात करना चाहता हूँ। अज़ादारों सकीना फूफी के पीछे छुपने लगी। शिम्र समझ गया यही बच्ची है। शिम्र आगे बढ़ा, सकीना को बीवियों से जुदा किया। जुदा करने के बाद अज़ादारों शिम्र एक मटा सदा लगाता है, एक बेकजावा नाका लाया जाए। नाका लाया गया। हाँ अज़ादारों शिम्र ने सकीना को बेकजावा ऊंट पर बिठाया। एक जुमला कहा है साहबे नाका, इस नाके को तेजी से ले जाया जाए। अज़ादारों लीजिए, जैसे जैसे नाका चलता था वैसे वैसे सकीना फरियाद करती थी, ए भैया सैयद सज्जाद, अरे जैसे जैसे नाका चल रहा है मेरा सीना छलनी हो रहा है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अज़ादारों खुदा को कोई गम न दे। अज़ादारों एक रवायत पढ़ता हूँ, अल्लामा पीर अली रहमान ने अजीब तरीके से रकम किया है कि जब ये काफिला असीरों का काफिला दरबार यजीद में पहुंचा, इधर कैदी खड़े हुए हैं, इधर आबिदे बीमार खड़ा हुआ है। अज़ादारों इसी असना में क्या देखा, एक बच्ची आती है यजीद के पास जिसका नाम रमला होता है। रमला यजीद से कहती है, ए मेरे बाबा मुझे ये नन्हा सा सर चाहिए। ए मेरे बाबा मुझे ये नन्हा सा सर चाहिए। यजीद कहता नहीं नहीं बेटी मैं तुझे ये सर नहीं दे सकता। रमला कहती है, ए मेरे बाबा अगर ये सर नहीं मिला तो मैं खाक पर बैठ जाऊंगी। अज़ादारों ये जुमला सुनना था। एक बेटा सकीना ने कहा, पुपी अम्मा देखिए ये गुलाम ज़ादे हैं, ये कैसी बातें करते हैं। अरे मैं शहंशाह वफा की बेटी हूँ। अल्लाहु अकबर। अज़ादारों लीजिए
ये रमला जिद करती है यजीद से, मेरे बाबा मुझे ये सर चाहिए, मुझे ये सर चाहिए। यजीद कहता नहीं नहीं मैं तुझे नहीं दे सकता सर। आखिरकार रमला कहती है यजीद से, मेरे बाबा अगर नहीं दिया तो मैं खाक पर बैठ जाऊंगी। अज़ादारों लीजिए, यजीद ने वो सर नन्हा सा उठाया, रमला के हवाले किया। जनाबे सकीना ने ये मंजर देखा, एक जुमला का, फूफी अम्मा वो देखो रमला मेरे भैया अली असगर का सर लेके जा रही है। अज़ादारों ज़ैनब कहती है, ए बेटी सकीना जा तू जल्दी जा और रमले का पीछे पीछे चली जा। अज़ादारों रमला आगे आगे है, सकीना पीछे पीछे, रमला आगे आगे, सकीना पीछे पीछे। रमला अपने घर पहुंच गई, दक्कुल बात किया। हिंद ने दरवाजा खोला, क्या देखा कि रमला के हाथ में एक नन्हा सा सर है। रमला की माँ कहती है, हिंद कहती है, रमला ये बता ये सर कहाँ से लेकर के आई। अज़ादारों रमला कहती है, अम्मा हमने देखा है आपने एक झूला तैयार किया है, मैं ये सर लेकर के आई हूँ, आप वो झूला मुझे दे दीजिए। हिंद कहती नहीं नहीं मैं तुझे वो झूला नहीं दे सकती। अज़ादारों सुनिएगा, जनाबे सकीना हिंद के दरवाजे पे खड़ी हुई ये सारी बातें सुन रही है। एक बटा हिंद कहती, रमला ये तू किसका सर लेके आई है और वो झूला क्यों मांग रही है? वो मैं झूला नहीं दे सकती। एक मर्तबा कहा क्यों नहीं दे सकती? कहा इस वजह से ये झूला मैंने हुसैन के असगर के लिए बनाया था। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे। आज़ादारों लीजिए, सकीना ने जैसे ही ये सदा सुनी, अज़ादारों सकीना फूट फूट रोने लगी। हिंद ने आवाज सुनी, कोई बच्ची बाहर रो रही है। हिंद ने दरवाजा खोला, कहा आप कौन? कहा मैं मदीने की रहने वाली। अल्लाह अकबर, जैसे ही ये जुमला सुनना था ना, हिंद ने फौरन सकीना को अंदर किया, बैठने के लिए कहा। अब जो सकीना बैठी, फूट फूट के और गिरिया करने लगी। हिंद कहती, बच्ची जब से मैंने तुझे बैठने के लिए कहा है तू बहुत ज्यादा गिरिया कर रही है। अज़ादारों सकीना कहती है, ए हिंद इस वजह से जब से करबला से चली हूँ किसी ने तमाचे मारे, किसी ने ताज़ियाने लगाए, आज तक किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। तू पहली खातून है। अज़ादारों हिंद कहती, आप कहाँ के रहने वाली? हम मदीने के रहने वाले। अज़ादारों सुनिएगा, हिंद कहती है, अगर आप मदीने की रहने वाली हैं तो आप मेरे आका हुसैन को जानते होंगे। बस बात खत्म कर दी मैंने। आप मेरे आका हुसैन को जानती हैं? हाँ हाँ मैं आपके आका हुसैन को जानती हूँ। एक मरतबा हिंद कहती है, आप बताइए कि ये बताइए कि मेरे आका हुसैन के कितने फर्जंद हैं? कितने फर्जंद हैं? जनाबे सकीना ने नाम बताया, अली अकबर का नाम बताया, इमाम ज़ैनुल्लाब्दीन का नाम बताया, जनाबे अली असगर का नाम बताया। हिंद ने कहा तुमने बहुत सही नाम बताया है, यही मेरे आका के बेटों के नाम है, यही मेरे आका के शहजादों के नाम है। बस इतना और बता दे मेरे आका की बेटियां कितनी है? अज़ादारों जनाबे सकीना ने जनाबे सुगरा का नाम लिया, जनाबे कुबरा का नाम लिया। ये कह के सकीना खामोश हो गई। हिंद ने कहा तुमने मेरी शहजादी सकीना का नाम नहीं लिया। अज़ादारों सकीना ने कहा तुम मुझे शहजादी भी कहती हो और मुझे जानती भी नहीं, मैं कोई और नहीं, तुम्हारी शहजादी सकीना हूँ। ये किसी और का सर नहीं है, मेरे भैया असगर का सर है, वो जो नेज़े पे सर है मेरे बाबा हुसैन का सर है, वो जो घोड़े पे सर है मेरे चचा अब्बास का सर। रोटी मेरा तुझे वास्ते मेरे
कर हमारे आखिरी इमाम मज़हब और हम सबको उनके इंसान में शुमार करना माँ का दिल जवाब बेटे कलाशा अली अकबर की मैयत आ रही है। अली अकबर के सीने में तनेज़ा उसे शहर ने बड़ी मुश्किल से खींचा। अली अकबर के सीने में तनेज़ा उसे शहर ने बड़ी मुश्किल से खींचा। लिए मैयत चले शाहे मदीना अली अकबर की मैयत आ रही है। लिए मैयत चले शाहे मदीना अली अकबर की मैयत आ रही है। लिए सरवर चले लाशे जवां को सहारा दे कोई अब नीम जां को। लिए सरवर चले लाशे जवां को सहारा दे कोई अब नीम जां को। ज़मीं पर गिर न जाए चाहे वाला अली अकबर की मैयत आ रही है। ज़मीं पर गिर न जाए चाहे वाला अली अकबर की मैयत आ रही है। दरे क़ैमा है अब सैलानियाँ हैं बुका करती हुई सब बीबियाँ हैं। दरे क़ैमा है अब सैलानियाँ हैं बुका करती हुई सब बीबियाँ हैं। हरम के आगे आगे है सकीना अली अकबर की मैयत आ रही है। हरम के आगे आगे है सकीना अली अकबर की मैयत आ रही है। लगी बरछी है अकबर के जिगर में कयामत आ गई ज़हरा के घर में। लगी बरछी है अकबर के जिगर में कयामत आ गई ज़हरा के घर में। अभी कैसा गया सीने से नेज़ा अली अकबर की मैयत आ रही है। अभी कैसा गया सीने से नेज़ा अली अकबर की मैयत आ रही है। कोई जाके ये सुगरा से बता दे तू क्यों है मुंतज़िर ड्योढ़ी पे आके। कोई जाके ये सुगरा से बता दे तू क्यों है मुंतज़िर ड्योढ़ी पे आके। वतन आएगा कैसे तेरा भैया अली अकबर की मैयत आ रही है। वतन आएगा कैसे तेरा भैया अली अकबर
आ रही है। अगर अकबर का सीना देख लोगी तो मर जाओगी, जिंदा क्या रहोगी। अगर अकबर का सीना देख लोगी तो मर जाओगी, जिंदा क्या रहोगी। हो माँ तुम पर जवां का है जनाजा, अली अकबर की मैयत आ रही है। ओ माँ तुम और जवां का है जनाजा, अली अकबर की मैयत आ रही है। हुसैन इमाम हुसैन हैदर, 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 हुसैन इमाम हुसैन हेलो, आ रही है?